क्या लग रहा हूँ मैं, माँ कसम। अब लग रहा हूँ ना प्रेजेंटेबल, शादी करने लायक। Hello and welcome to Clueless. In my last video, I spoke about our flawed attitude towards money and how we as a society need a paradigm shift when it comes to our relationship with money. And the biggest takeaway you guys took from that video was, oh my god, Tanmay has huge palms. Anyway, on today's episode, I want to talk about one of my least favorite things in the world to do, budgeting. पैसा जो आता है उसे हम कहाँ पे खर्चा कर रहे हैं, कब खर्चा कर रहे हैं, इस पूरे सिचुएशन का प्लानिंग और हिसाब किताब, उसको हम बजटिंग कहते हैं। बजटिंग मेक्स मी सो एंशियस कि जब मैं बजट करता हूँ बहुत क्लियरली दिखता है कि मेरे कौन से खर्चे जरूरी खर्चे हैं और कौन से खर्चे मेरी फालतू पर्सनैलिटी को खुश करने के चक्कर में निकल जाते हैं। या I hate budgeting, but it's super important to budget. That's super duper important. Everyone should budget. Whatever your income, whatever your salary, whatever your pocket money, it is important that we all budget. क्योंकि no matter how tight your budget is, no matter what your salary is, दुनिया की हर कंपनी आपके इस बजट को बढ़ाने की कोशिश करिए ताकि आपके खर्चे ज्यादा हो। For example, even if you don't want one, रोज 17,500 लोग आपको क्रेडिट कार्ड बेचने की कोशिश करेंगे। Fuck off, just fuck off. Even if you don't want one, दुनिया की हर एक ई-कॉमर्स कंपनी आपको एक EMI चिपकाने की तैयारी करके बैठी है। Excuse me, ये फोन का भाव क्या है? Oh hi, it's 30,000 rupees. Oh okay, उतना मेरा बजट नहीं है। अरे तू ले ना बिंदास, 3 महीने के EMI पे ले ले। नहीं मुझे लोन नहीं चाहिए। अच्छा चल 3 साल की EMI पे ले ले। Okay, 3 years, pay me back आराम से। Okay, I'll think and let you know. Just take it यार। अरे I love you यार। I love you. Okay, fine, cool. दे दो मुझे। Okay, done. 33,000 का लोन कन्फर्म। 33,000? एक मिनट, ये 3,000 अभी बढ़ गया ना? हाँ, लेकिन फोन तुझे अब भी मिलेगा। ओके, बकरा। इसीलिए बजट पे स्टिक करना बहुत जरूरी है, क्योंकि पूरी दुनिया और उनकी सासू माँ चाहती है कि आप अपने औकात से बाहर खर्चा करें और उनको इंटरेस्ट दे। फ्लिपकार्ट, अमेज़न सब बेस्ट है, पर टू कोट अ ग्रेट मैन, सख्ती पिघलना नहीं है। तो बजट कैसे बनाते हैं ये मैंने सीखा विद 2 of my friends, गौरांग एंड अंशुमन, दोनों जो फाइनेंस इंडस्ट्री में काफी एक्सपीरियंस्ड है एंड पैसे के मामले में दोनों मुझसे बहुत ज्यादा जानते हैं। So I sat down with them and made a budget for 3 fictional people and here's how that went. Enjoy. Hello, how's it going? Are you guys feeling good? How is lockdown treating you? I think it's great in a way. I don't have to step out in traffic. So I think the 3 of us are really enjoying this lockdown. Yeah, Anshuman has no friends, so this has worked out well for him. This episode we are discussing budgeting. I wanted to make a budget for 3 people. Who these 3 people are, we will decide. How early did you start budgeting, Gaurang? Possibly maybe 8 or 10 years old. Really? That early? I was born in a Guju house. अंशुमन तू कब से बजट कर रहा है? मैं लास्ट मंथ से चालू किया है, जब से इसमें काम करना शुरू किया तब। Got it. Both things are okay. You can either be Gaurang, which is budget since you were basically a child, or you can be Anshuman, which is today also is fine. Let's start from today. Our first candidate is someone who's come to the big city from a small town. What is this person's name? Let's go with something sweet. Madhur. Okay, Madhur has come to Delhi. क्या करता है Madhur? IT. It's like Anshuman, you know him personally. Average salary, IT job India. Average IT industry monthly salary approximately 12,000. स्टार्टिंग में आजकल कोई 70 के नीचे नहीं था टेक्नोलॉजी वाला आदमी। Let's go with 70,000. अभी 17,000 रुपए बोलते गौरांग, लेकिन हाथ में कितना आता है? तो देखो 70 into 12 राइट। अब ही इज लकीली बिलो द थर्ड ब्रैकेट, मतलब 3 ब्रैकेट है ना, 5 लाख के नीचे, 10 लाख के नीचे, 15 लाख के नीचे। करेक्ट। अंडर द सेकंड ब्रैकेट सो उसका 20% टैक्स कटता है, प्लस देयर आर सम अदर टैक्स लाइक एजुकेशन सेस एंड समथिंग। मैं 25% मान के करता हूँ, 25% तो टैक्स निकाल दो बेचारे का। हम सबको देना पड़ता है गौरांग। अभी 22 साल का लड़का है, अभी से ही वो करने लगेगा तो फिर। 22 साल का नहीं है, 22 साल का है। अंशुमन तेरी उम्र क्या है? 22 साल। मेरे को नहीं मिलते 70। आईटी पढ़ा क्यों नहीं? Fair. एप्स बनाता तो मिल जाता। Gaurav, we've done the first step, right? We figured out this is what the income is post tax. Now how do you start factoring in expenses? आई थिंक सबसे पहला काम होता है रेंट। कुछ भी करो आपको टैक्स और रेंट तो देना ही है। तो अज्यूम करो अकेला नहीं रहेगा, किसी के साथ रहेगा, तो 30,000 डिवाइडेड बाय 2 कर लेते हैं। मधुर दिल्ली में आते ही ऑलरेडी गर्लफ्रेंड ढूंढ ली उसने, लिव इन रिलेशनशिप कर दिया। नहीं आई एम श्योर आईटी। हां फेयर। आईटी वाले कहां रहते हैं दिल्ली में बाय द वे? कहां? हॉस्कास में थोड़ी? नहीं हॉस्कास में सिर्फ एडवर्टाइजिंग और हां करेक्ट। गुड़गांव में तो 100%। गुड़गांव में 100%। तो गुड़गांव लिख देता, गुड़गांव में रेंट कर रहा है। चलो डन। 2 BHK के लिए 25,000 रुपए, 12,500 हो गया ना उसका। तो रेंट इसका 12,500 रुपया हो गया।
दूसरा बड़ा खर्चा होता है अपना ऑफिस जाने का और आने का। लेट से उसने आके बाइक ली तो बाइक का ईएमआई रहेगा उसका। और क्योंकि गुड़गांव है थोड़ा चौड़ में आके थोड़ा ढंग का बाइक लिया उसने, लाइक अ डिसेंट। अंशुमन बता कौन सी बाइक तू उम्मीद करता है कि तू कॉलेज में चला रहा होता? बुलेट। ज्यादा नहीं हो गया? सीधा बुलेट ही बोल दिया। ओहो हो। नहीं आई थिंक एक पल्सर। पल्सर देख लेता हूँ मैं, बजाज पल्सर प्राइस। हाँ वो बेस लेवल लेते हैं, ऊपर वाला मत ले। हाँ 68,000 बक्स। हाँ 70,000 रुपए। वो इंश्योरेंस भरेगा, टैक्स भरेगा। अंशुमन की आंखों में दुख और हवस बजाज पल्सर की। 24 मंथ्स का ईएमआई है 3,250। हाँ 3,250। फिर फ्यूल और मेंटेनेंस का 750 रुपए बाइक का ठीक होना चाहिए। हाउ डू यू नो? हैव यू एवर बीन अ बाइक गाय? नहीं मैं खर्चा करता था, बट माय अजम्पशन है वो सिर्फ गुड़गांव ऑफिस और वापस जाता है। गर्लफ्रेंड लिव इन है ब्रो। नई बाइक होगी तो सर्विसिंग भी फ्री मिलती है ना पहले 3-4 महीने। Gaurang, I feel like you are the one who wanted the bike. That's another rule of Gujaratis, they never get a bike. या फिर when you get bike, it's completely golden. Like there's no middle. Golden. Then you get like a fucking bike. ग्रोसरी में खर्चा करना होता है, मतलब वो खाएगा और एक बाइक का पैसा खर्चा करेगा, वो खुद नहीं बनाता। ग्रोसरीज कितना खर्चा होगा गुड़गांव में? तो मेरा ऑन एन एवरेज 10,000 जितना होता है। वी आर 2 people, so 5,000 लेके चल सकते हैं। हाँ बाइक का अराउंड 5-6,000 होता है, so another 3,000 इसका लेके चल सकते हैं। ओके डन। हाउस हेल्प 3,000, ग्रोसरीज 5,000, फोन बिल 1,000 रुपए करता है। आजकल जियो है, जियो पे सब जीते हैं 500 रुपए महीना। 500 रुपए महीना, ठीक है चलो। 250 होता है। हाँ 500 तक खींच लो। हाँ मधुर बहुत यूट्यूब देखता है, माँ कसम रात भर बैठ के स्ट्रीम। और डुअल सिम है तो another 200-300 उसका जाता है। हाँ करेक्ट दैट्स ट्रू। बड़े शहर में आया बंदा तो ड्यूल सिम होगा। अंशुमन क्या बात कही है, ब्यूटीफुल। मेरा डुअल सिम है। हाँ एक चीज हम भूल गए, इंटरनेट। आजकल इंटरनेट का 3,500 से 4,000 रुपए का खर्चा है महीना। 2,000 रुपए डाल दो, चलो बहुत ही बढ़िया फाइबर नेट। तो इलेक्ट्रिसिटी ले लो, बट वो मतलब मार्जिनल 1,000 रुपए हुआ। कितना है तेरा? 2,000 या 1,500 हम पकड़ के चल सकते हैं। ठीक है इसमें भी। चलो कितना हो गया खर्चा इसेंशियल्स पे टोटल? 27,000। 27,000 into 12 कितना हो गया? 52,500। उसका 27,500 ऑलरेडी चला गया, तो ही इज ऑलरेडी स्पेंडिंग अराउंड लाइक 55,000 ऑन जस्ट हिज नीड्स, एसेंशियल्स। ओके सो 70,000 का टैक्स कटने के बाद 52,000 सैलरी, उसके बाद 52,000 में से 27,000 रुपीज हैज गॉन इन। ये तो खर्चा होना ही है। अब नाउ लेट्स गेट टू द वांट्स, राइट? वेरी बेसिक वांट। हम लोग पहले पीवीआर जाते थे, अभी नेटफ्लिक्स में करेंगे। तो नेटफ्लिक्स, अमेज़न और हॉटस्टार का तीनों का मिला लेते हैं। तो मतलब थोड़ा शाना भी है, मतलब लोगों से लेता है। हाँ, तो पता चला तेरा। कितनी बार जाएगा अंशुमन तू बाहर? हफ्ते में एक बार जितना। हफ्ते में एक बार क्या करने आता है? ऐसा बस चिल दोस्तों के साथ, थोड़ा 1-2 ड्रिंक्स, थोड़ा खाना, थोड़ा चिकन लॉलीपॉप। हाँ 1,000 Into 5 करें? महीने का। हाँ into 5 चिल हैंग आउट खर्चा कर देते हैं। और क्या है उसके वांट्स क्या है? शॉपिंग तो करता होगा। अंशुमन लास्ट टाइम कब शॉपिंग किया तूने? एक काम करेगा, ऊपर मधुर से निकाल के अंशुमन लिख देगा आप। अब वो घर पैसे भेजता है कि नहीं भेजता? मैं तो नहीं भेजता, मेरे बचते ही नहीं है। बट वो बड़ा भाई है तो वो अपनी बहन को हर दूसरे महीने गिफ्ट देता है या फिर पैसा ये कैसा, ये कौन सा भाई है जो हर 2 महीने गिफ्ट देता है भाई? साल में एक बार रक्षाबंधन पे अगर उसने कुछ दिया तो ही। 5,000 रुपीज मतलब एडिशनल एक्सपेंसेस, जो पता मतलब छोटा छोटा हो जाता है खर्चा। ऑर्डर करने का मन कर लिया, आज घर पे खाना नहीं खाना था। चलो आई थिंक दिस इज गुड नाउ। आई थिंक बाकी सब लेट्स अज्यूम कुछ तो बचाता है। इतना मेहनत करने का कुछ नहीं बचेगा तो फिर बहुत सैड होगा। तो बचते हैं महीने के अबाउट 10,000 bucks। हमारा स्मॉल टाउन बॉय इज गुड। Yeah, it's decent. Our next is it's Riya Pednekar. Riya Pednekar. तेरी genuinely कोई फ्रेंड है ना रिया करके? Riya Pednekar lives with her family in Mahim. Riya अभी ग्राफिक डिजाइनर है, नई जस्ट उसने एडवर्टाइजिंग ज्वाइन किया रिया ने। You know she is promising new job. उसको कितने का सैलरी मिल रहा होगा? 30-35,000? हाँ उससे ज्यादा नहीं मिलता स्टार्ट में अनफॉर्चुनेटली। Gaurang, you have rejected designers when they've asked for more money, no? क्या तो मंथली रियाज बजट। चलो रिया का कोई लोन वोन कुछ नहीं है ना? ओके सो रिया का देखो, शी इज अंडर द टैक्सेबल ब्रैकेट ना। टोटल सैलरी 4,10,000 ऐसा कुछ बनेगा। छोड़ देते हैं उसका सारा पैसा, वो घर ले जाती है। रिया का रेंट नहीं है, हाउस हेल्प मेड नई सिचुएशन है, मॉम लिख देते हैं आप एंड मॉम एंड डैड। फोन बिल वो खुद भरती है? हाँ फोन तो भरेगी ना, मतलब क्या। हाँ बाइक नहीं है रिया का। ओके चलो ये कर देते। इसका फ्यूल एक्सपेंसेस कुछ नहीं है। ट्रांसपोर्ट होगा ना इसका? लेट्स से शी ट्रेन, माहिम ट्रेन में जाती है लोअर परल तक। हाँ लोअर परल तक ट्रेन में आती है माहिम से, वो स्टेशन के नजदीक भी रहती है। तो इजी पड़ गया उसके लिए। लेट्स से 1,000 रुपीज, लेट्स कीप इट 1,000 है। 1,500 तो लग ही रहता है, रिक्शा लेके जाएगी ना स्टेशन। माहिम में रिक्शा नहीं है बट टैक्सी
टैक्सी लेके 2000 कर दे भाई, 2000 कर दे ट्रैवल एक्सपेंस। उसके पास क्रेडिट कार्ड नहीं है, वाईफाई भी वो नहीं देती, वाईफाई का खर्चा वो नहीं देगी। पापा है ना, पापा कर देंगे। नेटफ्लिक्स वो करती है बिकॉज वो प्राइवेट अपना रखना चाहती है। शी एंजॉयज गोइंग आउट एंड हैविंग अ गुड टाइम विद हर एडवर्टाइजिंग फ्रेंड्स। रिया उड़ना चाहती है। रिया spends a decent amount going out। ठीक है, इसमें 10,000 रुपए खर्चा हो जाएंगे कपड़े, हैंग आउट, टैटू, piercing। So one of the things that we didn't consider because the small town guy will never give a gift, but Riya lives in a family setup. So gift is a very big thing. 5,000 तो बनेगा ही, because if you think about it, you will buy cake, you'll have like not 10 friends at least, friend को treat करोगे। 5,000 रुपए रख। ग्राफिक डिजाइनर तो कितने ही दोस्त होंगे, अकेले कोने में बैठ के ड्राइंग कर रहे होते, मतलब you know what I'm saying? मेरी इतनी दोस्ती टूटने वाली है इसकी बात। तो कितना हो गया टोटल खर्चा? 13,000 bucks मंथली एक्सपेंसेस। मतलब रिया बचाती कितने हैं? 20,000 रुपए। इसके केस में एक एक्सेप्शन भी है कि इस बंदी का कोई खर्चा भी नहीं है और ज्यादा शौक भी नहीं है। सेविंग बहुत ज्यादा है। She reads books, okay? Let's add 1,000 रुपए और खर्चा बुक्स का। She'll end up spending more in online and other formats. इसकी नीड्स में कुछ है नहीं, वांट्स ही है ज्यादातर तो पापा की परी। पापा की परी नहीं है, वो मेहनत करती है। ठीक, guys, you guys need to stop shitting on Riya. I really don't like. Also, graphic designer, वो she's also talented. So I would also want to factor in 5,000 bucks for हर महीना कुछ equipment लिया उसने, नया stylus लिया, ये लिया, just something. 23,000 हो रहा है उसका। 19,000 रुपए खर्चा आ रहा है, तो she's saving about 15,000 bucks. Salary does not matter. What you save matters, right? Our last candidate is Rocky उपेन पटेल। उपेन पटेल एक कॉर्पोरेट जॉब करता है, बैंगलोर में। इज गुजराती इन साउथ इंडिया। इट्स यू नो इट्स हैज एन इंटरेस्टिंग लाइफ। कॉर्पोरेट रखते हैं, बैंक में काम करता है, मैनेजर पोजीशन में, बैंक में काम करता है, बेस्ट। हाँ, मैनेजर है तो एक 1.25 तो समझते हैं मिनिमम। 1.25 मतलब he'll again fall into the second, no, third one। हाँ, मैं करता हूँ, मैं देखता हूँ। over 10 lakhs, no? मतलब लेट्स अज्यूम ना, बिकॉज़ बोनस भी आएगा तो उसका ओवरऑल इनकम 15 लाख के ऊपर जाएगा। रेंट होगा उसका, अच्छा रेंट होगा। 25-30,000 बैंगलोर में अच्छा घर मिल जाता है। ओके, लेट्स जस्ट मेक इट कि उसको खुद का घर चाहिए, एक घर में वो रहता है, और उसकी शादी की उम्र हो गई। ही इज लाइक 30, 31, 32। मैंने क्यों बोल दिया, मेरी उम्र 32 है, बस चैट में वही आएगा, शादी कर शादी। अभी बेसिकली उपेन पटेल के बैचलर वाले दिन गए। उपेन जब क्लब जाता था सब लोग ओ उपेन चिल्लाते थे। अब वो उपेन नहीं रहा, अभी सेटल डाउन, उसे अच्छा घर लेना, हाउस हेल्प मेड भी होगा, फोन बिल भी होगा। And he has a mid-size car. He has a mid-size car, yes. Swift is a mid-size car. हाँ, क्योंकि आफ्टर 31, 32 ऐसा वो बाइक वाले दिन गए। अभी गौरांग अगर बुलेट पे दिखे, कैसे लगे तुझे अंशुमन? ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस इससे ज्यादा होगा महीने का, अगर गाड़ी रहेगा तो 5,000 पेट्रोल में खर्चा और मेंटेनेंस का 2-2,500 ले लेते हैं। कार ईएमआई भी होगा, उसने ईएमआई पे लिया है गाड़ी। नहीं, पर स्विफ्ट इतना महंगा है ही नहीं, 6-7 लाख में आ जाता है। 4 इयर्स का ईएमआई 16,700। ओके, इन जनरल ही विल गो टू अ जिम, तो एक जिम मेंबरशिप होगा। हाँ, सेक्सी बॉडी खर्चा। कोई गुजराती का सेक्सी बॉडी नहीं होता है। प्रोटीन शेक, जिम, 12-13,000। ठीक है, डन। बुक्स में 0 कर देता हूँ मैं। उपेन इज नॉट अ मैन ऑफ मेनी वर्ड्स। मैनेजर बैंक वाले कुछ पैसे करते नहीं। सो ही विल एटलीस्ट गो आउट 5-6 times, let's say 7 times a month the average। हाँ, पर बाहर जाता है, पर वो ज्यादा कुछ खाता पीता नहीं है क्योंकि सेक्सी बॉडी। हाँ, पर कभी कभी क्लब जा लेता है वो, तो बस यूं ही में एक्सप्लॉयटेशन ऑफ सेक्सी बॉडी कर लेते हैं। If there is actually Upen Patel who works in Bangalore। ओके, टोटल खर्चा 93,500। बस करते हैं, बट ये क्रेडिट कार्ड में जीता है इसको। तो उपेन पटेल while has sexy body by the end of the month he is really struggling। वो प्रोटीन शेक पीते पीते रो रहा होता है थोड़ा। तो love you उपेन, but this is a problem right here। मधुर का 10,000 बचता है, रिया का 15,000 बचता है। Clearly savings is inversely proportionate to your income। जितना कम कमाओ और जितना कम खर्चा करो, उतना ज्यादा घर ले जाओगे। You know, this is a concept that a lot of people don't understand, that if you earn more money या ज्यादा पैसे कमाते हो, उसका मतलब नहीं है कि तुम ज्यादा पैसे बचाते हो। इस केस में if you look, उपेन is like 32-33, 10-12 साल से वो काम कर रहा है, and he also started off at मधुर या फिर रिया की सैलरी। As we can see, उसका लाइफस्टाइल ज्यादा फास्ट चल रहा है और इसलिए वो क्रेडिट कार्ड में फुल डिपेंडेंट है आज के दिन। He can't just quit his job next day because वो 1 महीना लेट चल रहा है। आज का एक्सपेंडिचर नेक्स्ट महीने की सैलरी से आ रहा है। फिर in Upen's case, what do you do to reduce your cost? What do you do to get into the savings? नहीं, I think one thing he can curb is his outing expense, right? Exploitation of sexy body can be saved. If he had to choose, he should have chosen for a lower end contact, had a roommate। Yeah, all the essentials would get split dramatically. I'm sure there's a lot of stuff that we haven't exactly accounted for. So you guys let us know in the comment section, what are the other expenditures that you think are far more common than what we assumed? So I know that ये video देखने के बाद a lot of people must be like, let me try and make a budget of my own and see. What should they keep in mind while making the budget? Always is good to overestimate your expenses
expenses. अगर सरकार allow करती है तो underestimate your taxable income, but वो नहीं होगा. But just overestimate income by expenses by about 10 to 15% because खर्चा होता है. Health पे, insurance पे खर्चा या फिर just generally health related खर्चा हो जाता है. So there could be 3-4 areas that we have not accounted for because it's different for different people. But each one of your lives is unique in that sense. Your financial patterns are unique. I'll put a link in the description. You can just download it. It's fairly easy to do this. Thank you, Gaurang. Thank you, Anshuman, for joining me on this episode. I will see you guys once again in the next one. On that note, if you enjoyed the episode or if you think my massive palms are nice, make sure you hit like and subscribe and share the video with any of your friends, and maybe you guys can make a budget together. You know, like a fun group activity. Yeah, no one's gonna do that. Like and subscribe.